Hey everyone, welcome to my channel Radioactive Rider. मेरा नाम है George and I'm here to take you on an amazing journey that I've had in the month of January. Basically, I went on a solo trip with my car and this was the first time I drove up to the mountains and it was an amazing experience altogether. We've all had a very difficult time over the past year. हम सभी घर से बाहर निकलना चाहते थे, हम सभी कहीं ना कहीं जाना चाहते थे and I was in a desperate need for a travel itinerary. I wanted to just go off, take a flight or take a bus or train or something. One day I had this brilliant idea, I wanted to try something that I had never experienced before. I had never driven up to the mountains. It was risky business altogether because I had known my car for 7 years, but this was the first time she was going up on the mountains. And what a baby she has been. Basically, I drove for around 1500 kilometers up and down. मैंने काफी सारी places visit करी. First I hit Murshidabad, then I went up to Raiganj, then to Siliguri. After Siliguri, I went straight up to Kalimpong. From Kalimpong, I went up to Pedong. I also got to visit a little part of Sikkim, South Sikkim basically. That was Rishikola. Then I started driving back. Then I drove off to Shantiniketan for a bit. And that was almost the closure of the journey. In fact, on the way, I made a lot of friends and I met a bunch of amazing people from across India. I guess I've made friends for life now. I discovered a lot of music on the road. I had a lot of adventure on the road. In fact, बीच में तो मैं खो भी गया था. It's a mixed bag of experiences over the period of 21 days. I can call it 21-day detox as such. And I am here to share my stories with you. I hope you love those stories. अभी तो फिलहाल I'll be driving off to work. बीच में आते रहूंगा, आप लोगों को डिस्टर्ब करते रहूंगा. तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए. अब मैं सुबह के 9 बजे कलकत्ता से बरहमपुर के लिए निकल तो पड़ा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे रास्ते में सबसे पहले एक एडवेंचर मिलेगा. गूगल मैप्स के सजेशंस के हिसाब से मैंने कृष्णनगर को बाईपास किया और मैं पहुंचा यहाँ. पर तब तक ऑलमोस्ट दोपहर के 2 बज चुके थे. আমি তো ভুল রাস্তায় ঢুকে পড়েছি. আমি ভাবলাম নবদ্বীপটা কাটিয়ে সোজা বেরিয়ে যাই. এইটাই শর্ট রাস্তা, বহরমপুর যাবেন দেখুন, একবার গেলে বুঝতে পারবেন. ভালো, একটা নতুন ব্যাপার. কোথায় যাবো বলো? মানে ওখানে গিয়ে কাউকে বলবো, সে গাড়ি চড়িয়ে দেবে? ওই লোক দাঁড়িয়ে আছে, সামনে মাঝি দাঁড়িয়ে আছে. ঠিক. Basically something that I'm experiencing for the first time. I'm on a boat with my car and we are crossing a river. It's fun. It's scary at the same time. नाव की सवारी तो काफी करी है मैंने, पर लाइफ में पहली बार मैं अपनी कार को एक बोट पर लेकर चढ़ा. इस नदी को पार करने में हमको लगभग 15 मिनट लगे. अब लंच तो स्किप हो ही चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना बरहमपुर जाने से पहले प्लासी देख लिया जाए. प्लासी एक छोटा सा गांव है और ये बरहमपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है. अगर आप इंडियन हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तब तो आपको जरूर पता होगा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में. ये वही जगह है जहां पे 1757 में ब्रिटिश फोर्सेस के रॉबर्ट क्लाइव और मुगल साम्राज्य के सिराजुद्दौला के बीच जंग लड़ी गई थी. बैटल ऑफ प्लासी को इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है. कहा जाता है कि इस जंग के बाद से ब्रिटिश फोर्सेस का शिकंजा इंडिया के ऊपर धीरे धीरे कसते चला गया और इसी प्लासी की कहानी शुरू होती है मुर्शिदाबाद से, जहां हम अब जा रहे हैं. अब रात में बरहमपुर में कुछ खास करने को तो है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी डिनर निपटाकर सो लिया जाए. पर अगले दिन सुबह का नजारा देखने लायक था. पूरा शहर सुबह के 9 बजे भी कोहरे की चादर से ढका हुआ था. पर मैं चल पड़ा मुर्शिदाबाद की ओर. बरहमपुर से करीब 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है मुर्शिदाबाद. मुर्शिदाबाद को बंगाल सूबा का कैपिटल माना जाता था और उस वक्त बंगाल सूबा सबसे बड़ा टेरिटरी हुआ करता था मुगल साम्राज्य का. और बस इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट का रिचेस्ट ट्रेजरी कहलाया जाता था. और इस बात का सबूत हमें आसानी से मिलता है मुर्शिदाबाद के आर्किटेक्चर से.
जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हजारदुआरी पैलेस, जिसके बारे में हम जानेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में। मुर्शिदाबाद हिस्टोरिकली एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह है, not only in the West Bengal history but also as a part of the history of India. There is Hazarduari Palace, Nizamat Imambada, and places like Katra Masjid, the Jahanpur Shah Cannon, Khoshbagh Garden, Nasipur Palace, Katgola Palace, and a lot more. आपको पता है हजारदुआरी पैलेस को हजारदुआरी क्यों कहा जाता है? हजारदुआरी का मतलब है 1000 doors। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है हजारदुआरी के बारे में। जब ये पैलेस बनाया गया था, 1000 दरवाजों में से 100 दरवाजे नकली बनाए गए थे। और ये 100 दरवाजे इसलिए बनाए गए थे ताकि अंदर कोई जानवर घुसाए या फिर चोर घुसाए तो वो कंफ्यूज हो जाए और उसको पकड़ लिया जाए। हजारदुआरी पैलेस के कॉम्प्लेक्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक तोप दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है बच्चा वाली तोप। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये तोप आज तक बस एक ही बार फायर हुआ है, और ये जब फायर हुआ तब आसपास की जितनी प्रेग्नेंट और एक्सपेक्टिंग औरतें थी उन्होंने डिलीवरीज दे दी। तो उसके बाद से नवाब ने कहा नहीं भाई इस तोप को और चलाऊंगा। हजारदुआरी पैलेस 1824 से 1838 के बीच में बनाया गया था और ये पूरा कॉम्प्लेक्स करीब 40 एकड़ की एरिया पर बिछा हुआ है। और इस कॉम्प्लेक्स में आप देख पाएंगे हजारदुआरी पैलेस, निजामत इमामबाड़ा, क्लॉक टावर, मदीना मस्जिद और बच्चा वाली तोप। ये पैलेस आज एक हेरिटेज साइट है और इसे मेंटेन करती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस पैलेस को अब एक म्यूजियम में बदल दिया गया है और इस म्यूजियम के अंदर आपको मिलेंगी 19 गैलरीज, जिसके अंदर मुर्शिदाबाद हिस्ट्री की कई सारी आर्टिफैक्ट्स सेफली स्टोर्ड रखी हुई हैं। हजारदुआरी पैलेस के ठीक ऑपोजिट में ही है निजामत इमामबाड़ा, जिसे इंडिया का सबसे बड़ा इमामबाड़ा माना जाता है। हालांकि ये इमामबाड़ा बस मुहर्रम के दौरान खाली 10 दिन के लिए ही खुला रखा जाता है। इमामबाड़ा के ठीक साइड में ही आप देख पाएंगे मदीना मस्जिद और बच्चा वाली तोप। वैसे तो पूरे हजारदुआरी कॉम्प्लेक्स में कई सारी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि त्रिपोलिया गेट, चौक मस्जिद और हजारदुआरी पैलेस इन इटसेल्फ। बट मुझे सबसे खास चीज लगी हजारदुआरी पैलेस के ठीक पीछे से ही बह जाती हुई भागीरथी नदी, जो हजारदुआरी पैलेस के भीड़-भाड़ से बस 2 मिनट की ही दूरी पर है कुछ ऐसा। I could not explore a lot in Hazarduari because we'll need permission to shoot inside the premises of the palace. Next time I'm going to write a letter to the ASI or the Archaeological Survey of India and probably get a permission to shoot inside the palace itself. So Katgola Gardens, here we come. Where's the belt? Hey. अगर आप मुर्शिदाबाद आए हुए हैं और आपको फूलों और बगीचों का शौक है, तब तो आपको पक्का काटगोला गार्डन्स जाना चाहिए। काटगोला गार्डन्स हजारदुआरी पैलेस से करीब 4 से 5 किलोमीटर की ही दूरी पर है। इस 30 एकड़ पे बिछे हुए काटगोला गार्डन्स में आप देख पाएंगे काटगोला पैलेस और मुर्शिदाबाद का सबसे पुराना जैन मंदिर श्री आदिनाथ मंदिर। काटगोला गार्डन्स का एक अहम हिस्सा है उसका रोज गार्डन। कहते हैं कि इस रोज गार्डन में कभी ब्लैक रोजेस पाए जाते थे जो कि पर्शिया से लाए गए थे, और आज ये ब्लैक रोजेस बहुत ही रेयर स्पीशीज है। काटगोला गार्डन्स में आप देख पाएंगे एक बावली या फिर स्टेपवेल, जो कि यूजुअली आपको ईस्टर्न इंडिया में कहीं नहीं दिखेगा। काटगोला पैलेस बनाया गया था अर्ली 1700s में, जब राजस्थान के दुग्गर फैमिली मुर्शिदाबाद आए। इस पैलेस को दुग्गर फैमिली प्राइवेटली मेंटेन करती है और मेरे हिसाब से तो ये मुर्शिदाबाद की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। काटगोला गार्डन्स में आपको ज्यादातर आम के पेड़ दिखाई पड़ेंगे, पर वैसे तो पूरे गार्डन को ही बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। गार्डन के बिल्कुल एंड में आप देख पाएंगे आदिनाथ मंदिर या फिर परेशनाथ मंदिर, जिसे 1933 में लक्ष्मीपत सिंह दुग्गर ने बनवाया था। इस मंदिर में भगवान आदिश्वर की एक मूर्ति है जो करीब 900 साल पुरानी है। और अगर काटगोला की खूबसूरती का मजा आप लेना चाहते हैं तो आइए, देर किस बात की। I just got done with Katgola Gardens, Katgola Palace. This is the Dugar family palace. It's beautiful inside. A recent Bengali film called Agje Chilo Raja by Srijit Mukherjee. He's a very popular director of Bengali films. He shot his movie inside the premises.
and it's beautiful. I have to avoid the fog again, so it's already getting dark. But there was one place, there was a little staircase. It went down to the Bhagirathi river. That place was amazing. That it was just 5 or 10 minutes of serenity, and it was amazing. It was quiet, it was calm, only a couple of people there. Do figure out that staircase. If you're coming down to Hazardwari, make sure that you're visiting this place. And especially if you're coming down in winters, it's going to be mind-blowing. So, that's it. Right now, I'll be making a move. I'll be starting my journey back to the hotel. So, yes! Let's drive down. रेडियो एक्टिव राइडर के अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जगत सेठ का घर, नासीपुर पैलेस, कटरा मस्जिद और जहां कोशा कैनल। और आपको क्या लगा, बस इतना ही? बिल्कुल नहीं। और इन सब के अलावा मैं आपको दिखाने वाला हूं जाफरगंज सेमेट्री, अजीमुन्निसा बेगम की कब्र और साथ ही में जाफरगंज पैलेस का दरवाजा। और अगर आप लोगों को आज का ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आने वाले वीडियोस को मैं किस तरह से और भी बेहतर बना सकूं। तो चलिए फिर अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात फिर से होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।